Okay. So after the carbohydrates, we now continue with the second biomolecule, that is proteins. So first of all, what is the importance of proteins in our body? Repairs tissue. Helps in bodybuilding, growth and maintenance of tissues. ठीक है, जो भी tissue repairing related functions है, they are related with the proteins. So hormones, enzymes, ये सब भी proteins होते हैं जिसके बहुत सारे important functions होते हैं. ठीक है, hormones, enzymes क्या होते हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे. So proteins first of all is a biomolecule which is very important for many of the functions, and that is why it is ranked 1 or ranked first among all the biomolecules. So proteins word is basically related with the Greek word proteos, which means first. So because they are ranked first or ranked 1 among the biomolecules, it's given the word protein with respect to the word proteose, जिसका मतलब होता है first. ठीक है. Protein structurally is a polymer of alpha amino acids. Alpha amino acids. Matlab, when many alpha amino acids combine, they form a long chain polymer which is called as a protein molecule. ठीक है, अब एक अल्फा अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या रहता है? As per the name, when I say alpha amino acid, acid means it contains a functional group carboxylic acid. Now, which is the alpha carbon with respect to COH? Alpha carbon कौन सा होता है? The one next to it. Next to it. मतलब whatever is the functional group, उसके adjacent carbon को alpha बोलते हैं. The carbon of COH is not the alpha carbon. ठीक है? So this alpha carbon is bonded with the amino group. So this becomes your alpha amino acid. If I satisfy the central carbon valency, one is with H and other is with R. ठीक है? So this R basically is the side chain of the alpha amino acid. It's called as the side chain. As the R changes, the alpha amino acid changes, and as the alpha amino acid changes, the protein molecule will change, and obviously its function will also change. So whatever protein is formed, it is mainly dependent on what is the R part or the side chain of the alpha amino acid. Okay. Now this alpha amino acid can be classified into 3 parts depending on different scenarios. The first is it could be classified into acidic alpha amino acid or basic or neutral. So if we look at the structure carefully, the amino group is a basic group because of the lone pair on nitrogen, right? And the COH group is acidic in nature. So if the side chain contains a carboxyl group, contains a COH group, then the number of carboxyl in the entire alpha amino acid will be hello. Could you repeat? If the side chain R contains a carboxyl group, COH group agar usme rahega, then the number of carboxyl sorry, number of carboxyl group in the entire alpha amino acid will be how many? 2. So if the number of carboxyl are exceeding the number of amino group, then the overall alpha amino acid will be acidic. Vice versa, if the side chain contains amino, तो amino के group ज़्यादा हो जाएंगे carboxyl से, तो obviously the alpha amino acid will be basic. और अगर carboxyl और amino group दोनों equal होंगे, then it will be a neutral alpha amino acid. Fine with the first part? Yeah. Yes. Then if we look at the central carbon,
So this carbon is attached to a hydrogen, carboxyl, R, and amino. All the 4 groups are different. So this carbon becomes chiral. So it can be represented in the Fischer projection with the most oxidized carbon at the top, matlab carboxyl upar, the side chain are niche, and now I can have H and NH2. So now if the amino group is on the right side, then it is called D alpha amino acid. जैसा हमारा कैपिटल डी कैपिटल एल नोटेशन था फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, राइट? व्हाट वाज कैपिटल डी इन शुगर्स? कैपिटल डी शुगर्स में क्या था? Right. विच कार्बन के लिए? Second last. करेक्ट. सेकेंड लास्ट कार्बन का OH ऑन द राइट, इट्स अ डी शुगर. सेकेंड लास्ट कार्बन का OH ऑन द लेफ्ट, इट्स अ एल शुगर. वैसे ही if the amino group of the second last carbon will be on the right, it's a D alpha amino acid. इसका mirror image लेंगे तो we'll get a L alpha amino acid. ठीक है? And third part, it is classified into essential and non-essential alpha amino acid. ठीक है? अब जो अल्फा अमाइनो एसिड हमारा बॉडी प्रोड्यूस कर सकता है एंड विच वी डिड नॉट टेक इट फ्रॉम द डाइट विल बी क्लासिफाइड इनटू non-essential. The body is already producing certain alpha amino acid and that is not required to be taken externally from the diet. They will be classified into non-essential alpha amino acid. बट ऐसे कुछ हम अल्फा अमाइनो एसिड्स है जो बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकता एंड वी नीड टू टेक इट फ्रॉम द डाइट, दे वुड बी क्लासिफाइड इनटू एसेंशियल अल्फा अमाइनो एसिड. अंडरस्टूड? ठीक है. सो देयर आर फ्यू एग्जांपल्स व्हिच वी नीड टू रिमेंबर. जैसे प्रोलाइन इज एन एसेंशियल अल्फा अमाइनो एसिड and tyrosine is an example of non-essential alpha amino acid. Around 20 alpha amino acids are known. उसमें से कुछ examples आपको याद रखने हैं under essential and non-essential. Not everything, but दो example आपको at least याद रखने हैं. जैसे यहाँ पर proline और valine याद रख लो. ठीक है? और यहाँ पर you can remember add glycine, tyrosine. ठीक है? Is this part clear, everyone? Okay. Next, alpha amino acid actually exists in the form of a dipolar ion. तो क्या होता है? We already have the structure of alpha amino acid now. The most oxidized carbon COH at the top, side chain at the bottom, H and NH2. Now in any molecule, whenever there is an acidic, sorry, acidic and a basic group present within the molecule, there is a possibility that the H of the acidic group can migrate to the amino group. तो जैसे ये migrate करेगा, the above carbon, when it loses the H plus ion, it will form COO negative. And the H when added with NH2 will form NH3 with a positive sign. Correct? So with the migration of the H plus from the acid to the base, it forms a dipolar ion. Overall molecule neutral hai, but there is a polarity of minus and plus. That is why it's called a dipolar ion. And this dipolar ion is called as Zwitter ion. It's called as Zwitter ion. So all the alpha amino acid mainly exists in the form of a Zwitter ion, and this is a more stable existence for the alpha amino acids. Fine with the concept? Yes. Yes, sir.
Now coming to the structure of proteins. So as I said, protein is a polymer of Alpha amino acid. alpha amino acid. So when many alpha amino acid will join and condense together, it will form a protein molecule. ठीक है, तो हम सिंपल वे में सबसे पहले दो अल्फा अमाइनो एसिड लेते हैं. So I have H2NCH with a R and COH. This is my first alpha amino acid. Plus again H2N को मैं HNH लिख रहा हूँ, CH with R. Let's say this is side chain 1, this is side chain 2 and COH. ठीक है, so when two alpha amino acids, ये अल्फा अमाइनो एसिड्स है, ठीक है, और दो अल्फा अमाइनो एसिड्स हमने लिए हैं. When it undergoes a condensation मतलब the loss of water. So the water is always lost from the OH of the carboxyl group and the H of the amino group. OH of the carboxyl and H of the amino. So after the loss of the water, left to right, if you look at the structure, I have H2NCH with the side chain R1, then C double bond O joined to NH, C double bond O joined to NH, followed by CH with a R2 side chain 2 and COH. Barabar? So I can say the two alpha amino acids are joined by a CONH linkage or CONH bond, and this particular linkage is called peptide linkage. The two alpha amino acids are joined together by a peptide linkage. Correct? So with two alpha amino acid, this particular molecule is called as a dipeptide. क्या बोलते हैं? Dipeptide. Keep responding, please. And the number of peptide linkages here are how many? 1. एक ही है. तो मॉलिक्यूल को डाइपेप्टाइड बोलते हैं, लेकिन पेप्टाइड के लिंकेजेस कितने हैं? एक. बराबर. वैसे ही अगर तीन अल्फा अमाइनो एसिड ज्वाइन करेंगे तो विल गेट अ Tri. and the number of peptide linkage will be 2. 2. Similarly, चार अल्फा अमाइनो एसिड से क्या मिलेगा? टेट्रापेप्टाइड. एंड उसमें नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेजेस होंगे 3. ऐसे बहुत सारे अल्फा अमाइनो एसिड जब मिलेगा, then it will form a polypeptide. And if there are n alpha amino acids, the number of peptide linkages will be N-1. n minus 1 will be n minus 1. Clear? Yes, sir. Now the peptides are represented with a 3-letter abbreviation. जैसे मान लो there is a dipeptide which is GLY-ALA. ठीक है, इस तरह का एक डाइपेप्टाइड दिया है. तो this GLY refers to the glycine alpha amino acid, glycine, and ALA is the abbreviation of alanine alpha amino acid. Now all the alpha amino acid have the basic structure H2N CH COH. What changes is only the R. So we need to know the R of the alpha amino acid. तो ग्लाइसिन के लिए ये R होता है H और एलेनाइन के लिए ये R होता है मीथाइल. मतलब if I ask you the glycine structure, it will be H2N, क्या हो जाएगा इधर? CH2 and COH. And alanine हो जाएगा H2N CH with a Yes. CH3 and COH. अब डायरेक्टली डाइपेप्टाइड आपको विजुअलाइज करना है, तो आपको यहाँ पर रखना है क्या? H और यहाँ पे CH3. बन गया आपका डाइपेप्टाइड which is named as GLYALA. Got the concept? Yes. Yes, sir.
ठीक है, और एक ऑब्जर्वेशन, व्हेन आई बॉन्ड R इक्वल टू H, व्हाट हैपेंस टू द कायरलिटी ऑफ द कार्बन? We get two same. So is it a chiral carbon then? No. No. So glycine is the only alpha amino acid which is optically what? Active or inactive? Inactive. Inactive. Because यहाँ पे chirality का loss हो जाता है. ठीक है, बाकी सारे अल्फा अमाइनो एसिड मतलब 19 out of 20 will be optically active. Only one, that is glycine, is optically Inactive. inactive. Optically inactive. समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Shivani says voice is not audible. Is it not audible to everyone? It's audible, sir. Shivani, the problem is from your side. Fine. So this was about the structure of protein. So with two alpha amino acid, the molecule formed is called dipeptide, having only one peptide linkage. As you change the R1 and R2, the dipeptide will keep on changing and the function of the protein also changes. Now, after the structure of protein, we have classification of protein. Classification of protein. दो तरह के classification है. The first classification is based on shape. Based on shape. Okay. On the basis of shape, the proteins are classified into two types. The first one is globular proteins. And the second one is fibrous proteins. Globular and fibrous. अब देखो यहाँ पर you will be easily remembering this. Globular मतलब globe के जैसा, और globe का shape कैसा होता है? Spherical. तो globular proteins are spherical in shape. ठीक है, और fibrous मतलब fiber के जैसा, fiber यानी धागा, तो it has a thread like shape, मतलब बहुत ही पतला सा फाइब्रस प्रोटीन होता है. ठीक है, अब धागा जो है पानी में डिसॉल्व करता है क्या? धागा नहीं. तो यहाँ पर हम बोलेंगे वाटर इनसल्यूबल. तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स जो होते हैं वो स्पेरिकल शेप के साथ वाटर सल्यूबल होते हैं. ठीक है, so globular proteins are spherical in shape and soluble in water. Fibrous proteins are thread-like structure, which are basically the polypeptide chains lying parallel to form a fiber-like structure. ठीक है, तो नाम से fiber-like या thread-like shape रहता है इसका, and पानी में वो dissolve नहीं करता है, so they are water insoluble. ठीक है, अब इसमें examples याद रखने का एक simple trick है. तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स के एग्जांपल्स यू कैन रिमेंबर एज फीटा. ठीक है, वेयर P स्टैंड्स फॉर पेप्सिन. कैन यू टेल मी व्हाट इज द रोल ऑफ पेप्सिन? It converts सुना है कि नहीं? converts glucose to glycogen or something like that. ना. It protects our wall का lining, stomach का lining. हाँ, it helps in digestion. Pepsin is secreted from stomach and helps in digestion. H is hemoglobin. Definitely ये तो पता रहेगा. It is a Component of RBC. oxygen carrier, na? Hello, are you all there? Yes, Yes, sir. sir. I. Yes, sir. I is insulin.
What is insulin responsible for? Blood sugar level. Blood sugar level. T is thyroglobulin. Thyroglobulin related to thyroid glands, helps in maintaining the level of thyroid. किससे related होता है? Thyroid gland. Iodine content helps to maintain the level of iodine. And A is albumin, which is the protein found in eggs. Albumin is egg protein. The pepsin in stomach is helping in digestion. Hemoglobin is oxygen carrier. Insulin, blood glucose level. Thyroglobulin is secreted from thyroid glands, and albumin is a protein in eggs. उसके बाद fibrous के अंदर we have the examples to be remembered as KFC, McDonald's. KFC M यानी KFC McDonald's याद हो जाएगा ना? So K is related with keratin. Where is keratin present? So hair. Hair, nails में, skin में. Hair, nail, skin का protein is keratin. F is fibroin. This is the protein found in silk. Fibroin is the silk protein. C is collagen. Collagen is found in tendons, जो neck movement के लिए responsible होता है. And M is the myosin, protein found in muscles. Myosin in muscles. Fine. ये काफी छोटा सा पार्ट है और काफी सिंपल भी है. ग्लोब्यूलर नाम से स्पेरिकल शेप, वाटर सोल्यूबल, एग्जांपल फिटा. एंड फाइब्रस में फाइबर या थ्रेड लाइक एंड वाटर इनसोल्यूबल, एग्जांपल KFCM. ठीक है. वन मोर थिंग टू बी एडेड, जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं दे आर वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड pH चेंज. Globular proteins are sensitive to temperature and medium, यानी type of medium कैसा है उसके ऊपर globular protein का changes हो सकता है. ठीक है. Whereas fibrous proteins जो है वो comparatively stable होते हैं. Stable to मतलब बहुत ज्यादा अगर change ना हो तो कोई problem नहीं होता है. Stable to moderate change in temperature and pH. Okay, तो इसका distinguish आ सकता है आपको या फिर एक simple short note आ सकता है wherein you will cover these important points. ठीक है. Yes, sir. And second classification of protein is based on structure. Based on structure. प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक्चुअली बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है. So to understand the complicated structure, we have broken down this into 4 parts. The structure is categorized into a primary structure, secondary structure, tertiary structure, and quaternary structure. Primary, secondary, tertiary, and quaternary. ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं. The primary structure gives you the information about sequence of alpha amino acid. Sequence of alpha amino acids. ठीक है. मतलब जब हमने डाइपेप्टाइड का बात किया था तो I had only 2 side chains R1 and R2. But for a polypeptide it's going to be a huge long chain with R1, R2, R3, R4 up to Rn times. हाँ कि नहीं? Yes. यहाँ पर जो प्रोटीन का सीक्वेंस है दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द 3 letter abbreviation. जैसे
ALA, GLY, SER, PRO, LYS, again GLY, GLN and so on. ठीक है, तो ये कॉल आउट है इन द सीक्वेंस ऑफ द अल्फा अमाइनो एसिड। जैसे यहाँ पर पहला एलेनाइन है, फिर ग्लाइसिन है, सीराइन है, प्रोलाइन है, लाइसिन है, अगेन ग्लाइसिन है, फिर ग्लूटामाइन है एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपको ध्यान नहीं रखना है, ये जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि इंस्टेड ऑफ दिस, इफ देयर इज अ कॉल आउट ऑफ द प्रोटीन एज ALA, SER, GLY, then PRO, GLY, LYS and GLN। तो यहाँ पर मैंने प्रोटीन्स को सेम ही रखा है, सॉरी अल्फा अमाइनो एसिड को, बट जो सीक्वेंस है वो बदल दिया है। तो टेल मी, विल द प्रोटीन चेंज? Yes, sir. Yeah. यस। प्रोटीन में ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो the sequence of the alpha amino acid decides the function of the protein. If there is a breakdown or a difference in the sequence of alpha amino acid, the protein changes, its function changes. तो प्रोटीन करने क्या चाह रहा था और सीक्वेंस अगर बदल गया तो करके क्या आएगा, उसमें इश्यूज हो जाता है। and that leads to the unwanted production of the cells, which ultimately results in what? Cancer. Yes, cancerous growth of the cells. Clear? So could you please repeat this point? See, the sequence of the alpha amino acid, let's say, is this. Barabar? Now, because of some problem, if the call out changes, मतलब यहाँ पर GLY SER की जगह SES GLY हो गया, PRO LYS की जगह PRO GLY LYS ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, तो अगर ये सीक्वेंस में एक भी अल्फा अमाइनो एसिड का अटैचमेंट अगर चेंज हो जाता है तो पूरा प्रोटीन ही बदल जाएगा। बराबर? So this protein will have some function 1, but this protein will have some different function altogether, function 2. बराबर? So we expected this protein to do a certain function, but because there was a change in the sequence due to XYZ reason, the function of the protein actually changes. और प्रोटीन का अगर फंक्शन चेंज होता है तो वो एक्चुअली अनवांटेड सेल की प्रोडक्शन को रिलेट कर जाता है, और जो अनवांटेड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं दे एक्चुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लीड्स टू द cancerous growth, and that is the basic reason for the cancer. Sir. Hmm. Sir, so can we say that nicotine is also an amino acid? It is a type of amino acid. It is. Okay, sir. Fine with this? Yes, sir. Yes, sir. Okay, then the secondary structure is the interaction between the alpha amino acid. तो यहाँ तो हमने एक सिंपल लीनियर चेन में बात किया है। अब मुझे बताओ, हर दो अमाइनो एसिड के बीच में व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज इज प्रेजेंट? पेप्टाइड, which is C double bond O NH. Similarly, इन दोनों के बीच में भी there will be a peptide linkage of C double bond O NH and so on. हाँ कि नहीं? Yes, sir. Now, this carbonyl group is polar due to the difference in electronegativity. Even the NH is polar due to the difference in electronegativity, nitrogen minus, hydrogen पे plus. Similarly, यहाँ पर दूसरे पेप्टाइड के लिए भी प्लस माइनस और माइनस प्लस का पोलैरिटी डेवलप होगा। अब क्या होता है, ये जो डिफरेंट पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं उनमें देयर इज अ लिंकिंग, मतलब द ऑक्सीजन विद अ डेल्टा माइनस अट्रैक्ट्स द H with a delta plus of the second peptide linkage. पहले पेप्टाइड लिंकेज का ऑक्सीजन और दूसरे पेप्टाइड लिंकेज का हाइड्रोजन दोनों एक साथ एसोसिएट होते हैं, एंड दैट एसोसिएशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बराबर?
अब जैसे ही यहाँ पर ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन लिंक करता है तो यहाँ पर एक हेलिकल स्ट्रक्चर का प्रोडक्शन होता है. दिस इज कॉल्ड राइट हैंडेड हेलिक्स, हेलिकल स्ट्रक्चर, और इसको बोलते हैं अल्फा हेलिक्स. क्या बोलते हैं? अल्फा हेलिक्स. ठीक है, तो क्या होता है एग्जैक्टली यहाँ पर मान लो आपका एक कार्बोनाइल ग्रुप है और इधर आपका एक NH ग्रुप है. तो अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर बना एक हाइड्रोजन बॉन्ड. वैसे ही यहाँ पर अलग अलग हाइड्रोजन बॉन्ड्स जब बनते हैं तो पूरा अल्फा अमाइनो एसिड का चेन जो है एक हेलिकल स्ट्रक्चर ले लेता है, एंड दैट हेलिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द अल्फा हेलिक्स. ठीक है, एंड अल्फा हेलिक्स के साथ साथ इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बीटा प्लीटेड शीट्स. बीटा प्लीटेड शीट्स, ये मोर और लेस ग्रेफाइट के जैसा स्ट्रक्चर आप विजुअलाइज कर सकते हो, जहां पर एक लेयर में आपके बहुत सारे अल्फा अमाइनो एसिड है, दूसरे लेयर में भी बहुत सारे अल्फा अमाइनो एसिड है, और उन दोनों के बीच में देयर आर सम लिंकेजेस व्हिच आर जॉइनिंग द अल्फा अमाइनो एसिड. इफ यू रिमेंबर ग्रेफाइट में भी किया था, कार्बन का एक लेयर था, वापस कार्बन का एक लेयर था, और बीच में वेंडर वॉल्स फोर्सेस थे, राइट? दिस इज द ग्रेफाइट स्ट्रक्चर, हाँ कि नहीं? हेलो. Yes. तो वैसे ही यहाँ पर बीटा प्लेटेड शीट में ऊपर एक अल्फा अमाइनो एसिड का लेयर बना दिया. ठीक है, ये ऐसा वाला, और नीचे भी एक अल्फा अमाइनो एसिड का लेयर बना दिया. मतलब दो पैरेलल लेयर्स है और उनके बीच में अलग अलग टाइप के इंटरएक्टिव फोर्स होते हैं, विच कैन बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अ डाइसल्फाइड लिंकेज, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस और एनीथिंग. बराबर. तो यहाँ पर अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बना. अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, टर्शियरी स्ट्रक्चर में, द अल्फा हेलिक्स and the beta pleated sheets, beta pleated sheets are joined together. तो ये दोनों का एक साथ एसोसिएशन होता है, and that leads to the tertiary structure. tertiary structure. ठीक है, तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में आप कुछ ऐसा देखोगे, ये आपका बीटा प्लीटेड शीट्स है, फिर ये आपका हेलिकल स्ट्रक्चर आया, वापस बीटा प्लीटेड शीट, और फिर हेलिकल स्ट्रक्चर एंड सो ऑन. ठीक है, ये तो मैंने लीनियर में बताया है, बट ये पूरा कॉइलिंग होता है, सांप जैसा एक स्ट्रक्चर दिखेगा. तो आप नोट्स में देखोगे, दे हैव गिवन दिस डायग्राम ब्यूटीफुली. द प्राइमरी स्ट्रक्चर इज अ सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड, उसके बाद बीटा प्लीटेड और अल्फा हेलिक्स बनता है, कंबाइन होकर टर्शियरी स्ट्रक्चर में वी हैव बोथ दिस थिंग्स टुगेदर. दिख रहा है कि नहीं? आर यू विजुअलाइजिंग इट? हेलो. Yes, sir. And then we have the fourth stage as the quaternary structure. The quaternary structure जो है, that is basically related to the combination of two different polypeptides. Two different polypeptides. ठीक है, तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हर प्रोटीन में नहीं होगा. आपका यहाँ पर एक पॉलीपेप्टाइड का स्ट्रक्चर है, लेट्स से दिस इज अल्फा हेलिक्स, दिस इज बीटा प्लीटेड शीट, देन अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड शीट. ये आपका एक पॉलीपेप्टाइड हो गया, और मैं यहाँ पर एक और बना देता हूँ ऐसा कुछ कॉइलिंग. ठीक है, सो दिस इज वन पॉलीपेप्टाइड एंड दिस इज अ सेकेंड पॉलीपेप्टाइड. तो जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो वो आपको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देता है. ठीक है, तो डायग्राम में आप देख सकते हो दो शेड्स है या दो कलर्स है which indicates the two polypeptide structures. Is this part clear to everyone? ठीक है, तो एक बार फिर से important points. Primary structure is a structure which gives you information about sequence of alpha amino acid which are linked by peptide bonds.
Then the alpha amino acids का carbonyl and NH के बीच में there is the formation of hydrogen bond which results into alpha helical structure. And when the parallel polypeptides are linked together by different bonds, it forms a beta pleated sheets. And then alpha helix और beta pleated sheet के बीच में वापस interaction होता है via hydrogen bonds, dipole dipole attraction या फिर London forces. इस तरह से tertiary structure बनेगा. And then अगर दो अलग polypeptides की बात करते हैं तो it results into the quaternary structure. Fine with this. Yes. Yes, sir. Okay, so after the structure of protein, we have the next simple concept of denaturation of proteins. अब नाम से क्या समझ में आया? Denaturation मतलब प्रोटीन्स का जो नेचर है वो पूरा का पूरा ब्रेक डाउन कर देना. मतलब प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन इज बेसिकली सिंपली कॉल्ड एज denaturation ऑफ प्रोटीन. मुझे बताओ, व्हेन मिल्क इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कर्ड, हाउ इज इट डन? Sir, lemon. Either we add lemon, which is nothing but the ascorbic acid, या फिर citric acid, या फिर विनेगर डालते हैं, बराबर, और फिर हीट करके उसको फर्मेंट करने के लिए रख देते हैं, बराबर. नाउ ड्यूरिंग दैट प्रोसेस द प्रोटीन ऑफ मिल्क, मिल्क का जो प्रोटीन होता है दैट इज कॉल्ड केसिन. केसिन इज द प्रोटीन ऑफ मिल्क. ठीक है, तो उसके कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर में ब्रेकडाउन हो जाता है, बराबर. तो जब ये ब्रेकडाउन होता है तो देयर इज अ डिस्ट्रॉय of the secondary and the tertiary structure, but the primary structure of the protein is retained. मतलब जो sequence of alpha amino acid है वो change नहीं होता है, लेकिन उसका secondary और tertiary structure पूरा का पूरा destroy हो जाता है. मतलब basically अगर आप इसको reverse में सोचो तो यहाँ पर इसका uncoiling शुरू हो जाता है, और uncoiling की वजह से beta pleated sheet, alpha helix का structure टूट जाता है, और बचता है क्या? खाली आपके पास ये sequence. So the process in which the protein structure is broken down, in which the secondary and the tertiary structure gets destroyed, but the primary structure is retained, is called as denaturation of proteins. Uncoiling होता है, shape destroy हो जाता है, biological activity खत्म हो जाती है. That is what happens in denaturation. ठीक है. Similarly, egg को जब बॉईल करते हैं और एग व्हाइट में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें भी जो अल्ब्यूमिन होता है which is the egg protein that actually gets broken down, and this process is also sometimes called coagulation. Coagulation, denaturation similar है. Understood? Yes. Perfect. So this completes sorry, this completes the proteins part of biomolecule. प्रोटीन पार्ट में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, एक बार वापस. प्रोटीन्स पॉलीमर होते हैं अल्फा अमाइनो एसिड्स के. अल्फा अमाइनो एसिड इज अ स्ट्रक्चर which have a side chain R. As the R differs, the structure of the alpha amino acid will change, the protein changes, the function of the protein also changes. Now alpha amino acid acidic, basic या neutral हो सकते हैं depending on carboxyl and amino groups in the molecule. It can be a D or a capital L alpha amino acid, and it can also be essential or non-essential. ठीक है, और अल्फा अमाइनो एसिड ज्विटर आयन की तरह एग्जिस्ट करते हैं जो कि एक डाइपोलर आयन होता है.
स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में जब अल्फा अमीनो एसिड में से पानी निकलता है तो वो डाइपेप्टाइड बनाता है, ऐसे करके ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड बन जाता है, व्हिच गिव्स द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन लिंक्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। प्रोटीन्स का 2 लेवल का क्लासिफिकेशन है, एक शेप के बेसिस पे और एक स्ट्रक्चर के बेसिस पे। दैट्स इट। Okay, now a small part about enzymes. Tell me, what are enzymes? Proteins. Enzymes are proteins, and what is the role of enzymes? Catalysts. Correct. They are biocatalyst. मतलब they act as the catalyst for the biological functions. Enzymes बहुत ही ज्यादा specific होते हैं. They are highly specific catalyst. मतलब एक एंजाइम जो है वो एक ही फंक्शन कर सकता है, दूसरा उसका फंक्शन पॉसिबल नहीं होता है. That is why we say they are highly specific and they operate at an optimum temperature of 25 to 30. Low body temperature. Body 25 to 30 नहीं, बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? बॉडी टेम्परेचर 37. 37, मतलब आइडियली 310 केल्विन के आसपास एंजाइम्स काम करते हैं. ठीक है, तो एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, दे आर बायोकैटलिस्ट यूज्ड टू कैटलाइज वेरियस बायोलॉजिकल रिएक्शंस. दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, मतलब वन एंजाइम कैन वर्क ओनली फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन and they operate at an optimum temperature of body temperature, that is 310 Kelvin. ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मैं एक सीक्वेंस बताऊं तो स्टार्च which is a polysaccharide can be converted into a disaccharide, that is maltose. What is the enzyme related with this? Sorry, Maltase. अमाइलेज या डायस्टेज. माल्टेज नहीं होता है, अमाइलेज या डायस्टेज. Maltose, which is a disaccharide, is converted into monosaccharide glucose, now with the help of maltase. And glucose can be further broken down into organic ethanol and carbon dioxide. This happens with the help of zymase. ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है. स्टार्च टू माल्टोस, which is polysaccharide into a disaccharide, then disaccharide into a monosaccharide, और मोनो से फिर ऑर्गेनिक इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्रेकडाउन. समझा? Yes, sir. ठीक है ना. एंजाइम काम कैसे करते हैं? द एंजाइम विच इज अ बायोकैटलिस्ट अटैक्स द सबस्ट्रेट. जो रिएक्शन में वो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, उसके सबस्ट्रेट पे जाके अटैक करता है. देन दिस फॉर्म्स एन इंटरमीडिएट ES कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स. और फिर ये कॉम्प्लेक्स जब टूटता है तो वी गेट द प्रोडक्ट एंड द एंजाइम इज कैटलिस्ट. क्या करेगा? हमेशा रिएक्शन खत्म होने के बाद पुनर्जन्म लेगा कि नहीं लेगा? इट इज सेड टू बी Yes, sir. रीजेनरेटेड. ठीक है, और ये एंजाइम सबस्ट्रेट का जो मैकेनिज्म है, दिस वर्क्स ऑन द लॉक एंड की मैकेनिज्म. लॉक एंड की मैकेनिज्म. जैसे हर ताले की एक ही चाबी होती है, वैसे हर सबस्ट्रेट के साथ एक स्पेसिफिक एंजाइम ही बॉन्ड कर सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर सबस्ट्रेट और एंजाइम का कॉम्बिनेशन होने के लिए स्पेसिफिक शेप रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है. सो लेट्स से दिस इज माय एंजाइम एंड दिस इज द सबस्ट्रेट. बराबर. तो यहाँ पर ये शेप ऐसा है कि सबस्ट्रेट और एंजाइम एक दूसरे में बाइंड कर सकता है. तो यहाँ पर बाइंड करने के बाद इट लीड्स टू द ES कॉम्प्लेक्स. तो अब आपका ES कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा दिखेगा, जहां पर आपका
सबस्ट्रेट इधर बाइंड कर चुका है. दिस इज द ES कॉम्प्लेक्स, राइट? हेलो, Yes, sir. ठीक है. और उसके बाद आपका एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बन जाएगा. सो लेट्स से ये अनबाइंड करके कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बना दिया, और जो एंजाइम है वो वापस वैसे का वैसा रीजनरेट हो जाएगा इन द सेम शेप. दिस इज द एंजाइम, दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्म. This is how the enzymes work on the basis of lock and key mechanism. That's it. Okay. Yes, sir. And now coming to the last part of the chapter, that is nucleic acids. Are you aware of nucleic acids? RNA, DNA. RNA and DNA. Perfect. So nucleic acids are that part of family of biomolecules which are responsible to store genes and the genetic information. So we all have resemblance with our ancestors, meaning the parents, grandparents, and that is because there is the genetic information. So the heredity characteristics or the genetic information is actually stored in the nucleus of the living cell. It's stored in a very tiny part, that is the nucleus of living cell. And that is why we call it as nucleic acids. Call it as nucleic acids. Fine. So let's say this is the cell. Inside the cell we have a small part which is a nucleus, और nucleus के अंदर कुछ particles होते हैं which are called chromosomes. Called as what? Chromosomes. This is the cell. This is the nucleus. Nucleus के अंदर कुछ particles है, they are called chromosomes. ठीक है. अब ये chromosomes के अंदर होता है DNA, which stands for deoxyribonucleic acid. Deoxyribonucleic acid. And RNA would be ribonucleic acid. Okay. Yes, sir. Now to understand the structure of DNA and RNA, कुछ basic concepts आपको पहले बता देता हूँ, then we'll go on to the details. DNA and RNA both consist of 3 components. How many? 3 components. First is a nitrogenous base. Nitrogen containing base होता है. Second is a sugar which is a pentose ribose sugar. 5 कार्बन का pentose ribose होता है. And तीसरा phosphate group होता है. Once again, both the DNA and RNA, which belongs to the nucleic acid, consist of 3 components to be remembered as BSP. BSP मतलब base, sugar, phosphate. Now दोनों में जो phosphate group है वो तो obviously common रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं होता है. The difference lies in the base and the sugar part. Base and the sugar part. ठीक है. तो अब हम differentiate करते हैं DNA और RNA के लिए. सबसे पहले हाँ. Sir, so the arrangement of base and the sugar decides the genetic information. Yes, base, sugar, phosphate, तीनों का combination. Phosphate से कोई फर्क नहीं पड़ता है in the genetic information. This is a part which is present in one of the strands of the DNA. ठीक है, ये मैं आगे बताता हूँ आपको. तो सबसे पहले when we talk about the sugar, both of them contains the ribose sugar.
जो आरएनए का शुगर होता है दैट इज कॉल्ड बीटा डी राइबोस. दिस इज द आरएनए शुगर. राइबो न्यूक्लिक एसिड का शुगर होता है बीटा डी राइबोस. Now, since it is a ribose sugar and pentose sugar, it will have a furanose वाला ring, जैसा हमने fructose में देखा था, right? And there will be 4 chiral carbons which are present over here. Now, tell me, the moment I write beta, सबसे पहले क्या strike हुआ? Beta मतलब OH ऊपर कि नीचे? Alpha was right down trans. Beta would be Left up. Left up cis. left up and cis. याद आया? तो बीटा मतलब OH किधर? ऊपर. तो OH H. सेकेंड कार्बन पे H OH, थर्ड कार्बन पे H OH और फोर्थ कार्बन पे CH2OH एंड H. बराबर. ये हो गया आपका बीटा डी राइबोस. नाउ जो डीएनए का शुगर होता है वो एग्जैक्टली सिमिलर होता है, लेकिन सेकेंड कार्बन पे ये जो OH का ऑक्सीजन है वो उड़ जाता है. इसीलिए द शुगर इज नेम्ड एज बीटा 2 डीऑक्सी डी राइबोस शुगर. बीटा 2 मतलब ये सेकेंड कार्बन है ना, ठीक है. तो लेट मी नंबर दिस. दिस इज योर फर्स्ट कार्बन जिसको हम 1 डैश या 1 प्राइम बोलते हैं. दिस विल बी 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम एंड 5 प्राइम. तो जैसे मैंने बोला था पेंटोज या 5 कार्बन का टोटल 5 कार्बन का शुगर रहता है. सो इट्स अ पेंटोज राइबोस शुगर. आरएनए और डीएनए में सिर्फ सेकेंड कार्बन का फर्क होता है. तो यहाँ पे जो OH है उसकी जगह खाली H हो जाएगा. दैट्स इट. मतलब नाउ द डीएनए का शुगर विल अपीयर एज अ पेंटोज शुगर. 4 कायरल कार्बन वर्टिकल पे डाल दो. बीटा है तो OH H. नेक्स्ट पे H एंड H. ये फर्क है. फिर आपका सेम H और OH और लास्ट में है CH2OH विथ H. समझा शुगर का फर्क? ठीक है. अब हम बेसिस की बात करते हैं. तो हियर वी आर विद द बेसिस. तो लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू, देन थोड़ा स्ट्रक्चर के ऊपर हम बात करेंगे. ओके. जो बेसिस है they are the nitrogenous bases which are classified into 2 families. One is called purines and other is called pyrimidines. Purines and pyrimidines. Purines में 2 bases होते हैं which are called adenine and guanine, to be remembered as A and G. Once again, purines में 2 bases होते हैं adenine and guanine, which are abbreviated with their first letter A and G. And pyrimidines में 3 base होते हैं to be remembered as cut. Cut refers to cytosine with a C, uracil with a U, and thymine with a T. So it's adenine, guanine, cytosine, uracil, thymine. Adenine, guanine purines family के होते हैं and cut यानी cytosine, uracil, thymine belong to the family of pyrimidines. ठीक है. Now इन पांचों के स्ट्रक्चर के लिए मैं कुछ ट्रिक आपको बता रहा हूं that you need to remember, because if the structures are asked, these tricks will be very helpful. So purine is a bicyclic structure made up of 2 cyclic rings. And pyrimidines जो है they are monocyclic. Purine bicyclic है और pyrimidine monocyclic है. Now the good news is each of the cyclic ring have a
कॉमन अरेंजमेंट, और वो कॉमन अरेंजमेंट क्या है? जस्ट ऑब्जर्व दिस, इट्स कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ये फिक्स है इन एवरी प्यूराइन पाइरिमिडीन बेस। क्या फिक्स है? कार्बन नाइट्रोजन ऑल्टरनेट, उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। वापस यहां पर बना दो, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। वापस यहां पर भी कार्बन नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एंड लास्टली अगेन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। सब में कॉमन हुआ? अरे हाँ कि नहीं? हेलो, ठीक है। अब प्यूराइन जैसे बाईसाइक्लिक मैंने बोला, तो इसमें वापस कार्बन के साथ नाइट्रोजन कार्बन ऑल्टरनेट में 5 मेंबर्ड रिंग होगा। अगेन यहाँ पर नाइट्रोजन 5 मेंबर्ड रिंग होगा। तो जैसे मैंने बोला, प्यूराइन्स आर बाईसाइक्लिक एंड पाइरिमिडीन्स आर मोनोसाइक्लिक। ये बेसिक सब में जो कॉमन पार्ट था वो बता दिया। अब जो अनकॉमन पार्ट है उसको दूसरे इंक से मैं लिख रहा हूं, जस्ट पे अटेंशन। एडेनाइन कंटेन्स एन अमाइनो ग्रुप एट दिस कार्बन, इसको मैं फर्स्ट कार्बन बोल देता हूं अपने रेफरेंस के लिए, अमाइनो एट द फर्स्ट कार्बन। एंड देन देयर इज ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ सिंगल एंड डबल। तो यहाँ पे डबल, फिर सिंगल, और यहाँ पे डबल, और लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ एक ही जगह डबल। बिकॉज अगर मैं ऑल्टरनेट रखने जाऊं और यहाँ पे डबल बॉन्ड रख दूं, इज इट फिजिबल, इज इट वैलिड? यहाँ पे डबल बॉन्ड Sir. वैलिड होगा क्या? क्यों? 5 बॉन्ड हो जाएंगे। करेक्ट, कार्बन पेंटावेलेंट हो जाएगा, जो अलाउड ही नहीं है। तो यहाँ पे गलत ही है, लॉजिकल, तो वो समझ में आ जाएगा। तो ट्रिक सिंपल है, पहले अपने बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया, फिर इंट्रोड्यूस करो अमाइनो एट द फर्स्ट कार्बन, देन ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स ऑन द राइट एंड द लेफ्ट, यू हैव द एडेनाइन स्ट्रक्चर तैयार। तो यहाँ पर अगर सेटिस्फाई कर लो वैलेंसेस को तो H आएगा, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, और यहाँ पे H, खत्म। This is the complete structure of adenine. Understood? Yes, sir. अब guanine में जो फर्स्ट कार्बन है वो कार्बोनाइल है, और थर्ड कार्बन पे अमाइनो है। मतलब ऐसे याद रखो कि अमाइनो यहाँ पे स्विच कर दिया और इस कार्बन को कार्बोनाइल बना दिया। ठीक है, रेस्ट जो डबल बॉन्ड्स का सीक्वेंस है। अब कैन आई प्लेस अ डबल बॉन्ड हियर? टेल मी लॉजिकली, हाँ या ना? No. नहीं, पेंटावेलेंट हो रहा है तो यहाँ नहीं आएगा। यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं? यस, और यहाँ पर भी प्लेस कर देना है। तो एग्जैक्टली सिमिलर स्ट्रक्चर है, खाली अमाइनो नीचे और कार्बोनाइल को ऐड कर देना है। अगेन सेटिस्फाई द वैलेंसी, यू हैव द H at the corresponding positions and the structure of guanine is ready. Fine. Now look Yes, at the sir. magic in the pyrimidines. pyrimidine में थर्ड वाला जो कार्बन है, तीनों बेसिस में कार्बोनाइल है। तीनों बेसिस में क्या है? कार्बोनाइल कार्बोनाइल कार्बोनाइल, कॉमन है, ये भी कॉमन है। ठीक है, अनकॉमन क्या है? साइटोसिन में देयर इज अमाइनो एट द फर्स्ट कार्बन, यूरेसिल और थाइमिन में दोनों में कार्बोनाइल है। साइटोसिन में खाली अमाइनो है, ये हाईलाइट करके रखो कि डिफरेंस क्या है, और बाकी दोनों में कार्बोनाइल कार्बोनाइल। अब मुझे बताओ, कैन आई प्लेस अ डबल बॉन्ड हियर? एम आई अलाउड? हाँ कि नहीं? Yes. यस, यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ, ये वाले पे? No. नहीं। इनफैक्ट जहां पर भी कार्बोनाइल ग्रुप आ जाएगा वहां पे आप डबल बॉन्ड प्लेस नहीं कर सकते हो। सो यू कैन प्लेस अ डबल बॉन्ड हियर एंड हियर आल्सो, हियर एंड हियर आल्सो। मतलब यूरेसिल एंड थाइमिन में यू विल हैव ऑल दीज एटम्स जॉइंड बाय सिंगल बॉन्ड एक्सेप्ट दिस डबल बॉन्ड व्हिच इज ऑलरेडी फिक्स्ड इन ऑल द 5 स्ट्रक्चर्स। बराबर? नाउ जस्ट सेटिस्फाई द वैलेंसी, यू हैव हाइड्रोजन हियर, H यहाँ पे, ये सेटिस्फाइड है, H H H H, यहाँ पर भी H H
H and H, खत्म। अब यूरेसिल और थाइमीन एग्जैक्टली सिमिलर स्ट्रक्चर है, खाली थाइमीन जो है दैट इज अ मीथाइल सब्स्टिट्यूटेड यूरेसिल। थाइमीन का स्ट्रक्चर यूरेसिल के जैसा ही है, खाली ये वाला हाइड्रोजन उड़ाया और मीथाइल लगाया। Hydrogen is to be substituted by the methyl, and here you are with the thymine structure. Clear with this? Yes, sir. ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको याद रखने हैं बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूराइन बेस, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पाइरिमिडीन बेस। ठीक है, तो जो ट्रिक्स से मैंने बताया प्लीज प्रैक्टिस इट ट्वाइस सो दैट यू रिमेंबर द स्ट्रक्चर्स वेल। So now with the bases introduced, let's talk about DNA and RNA का difference. तो DNA versus RNA में both consist of 4 bases. DNA consists of adenine, guanine, cytosine and thymine. Adenine, guanine, cytosine, thymine. RNA also consists of 4 bases जिसमें 3 common होते हैं, adenine, guanine, cytosine, and the uncommon base is uracil. यहां पर थाइमीन होता है and RNA में uracil होता है। Rest of the 3 bases are common in both RNA and DNA. Clear? Yes, sir. Okay. So now, as I said कि DNA, RNA दोनों में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। बेस का डिफरेंस मैंने बता दिया, प्यूराइन पाइरिमिडीन्स। शुगर का डिफरेंस क्लियर है, Yes, sir. एंड फॉस्फेट ग्रुप तो कॉमन होता है। ठीक है, अब डीएनए का कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता कैसे है? तो सीक्वेंशियली सबसे पहले देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड। Nucleoside. A nucleoside is a combination of base bonded with the sugar. तो जब बेस और शुगर का कॉम्बिनेशन होता है वो एक न्यूक्लियोसाइड बनाता है। तो लेट्स टॉक अबाउट डीएनए ओनली। तो डीएनए का जो शुगर है पहले वो बना देते हैं। तो दिस इज द पेंटोज शुगर, 4 कायरल कार्बन वर्टिकल पे, यहाँ पे बीटा है तो OH ऊपर H नीचे, डीएनए है मतलब HH आएगा, 3rd कार्बन पे HOH, 4th कार्बन पे CH2OH और H। शुगर बनाना आसान। And the carbons are numbered as 1 prime, 2 prime, 3 prime, 4 prime and 5 prime. अब इसको डैश या प्राइम इसलिए करते हैं क्योंकि जो बेसेस होते हैं ना उसके कार्बन्स को हम नंबर 1, 2, 3 देते हैं। तो जस्ट टू डिफरेंशिएट, बेस के लिए 1, 2 यूज करते हैं और शुगर के लिए 1 डैश 2 डैश या 1 प्राइम 2 प्राइम यूज करते हैं। ओके, बोलो। Now the base, the nitrogenous base is actually bonded to the first carbon of the sugar. तो यहां पर अटैच होता है आपका बेस। ठीक है, तो जब बेस 1 प्राइम कार्बन पे अटैच हो जाता है शुगर के तो वो बनाता है एक न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, एंड व्हेन द बेस, sugar and the phosphate, all the 3 are linked together, it forms a component which is called a nucleotide. Nucleotide. So nucleoside is base and sugar, nucleotide is base, sugar and phosphate. तो बेस तो मैंने आपको बता दिया 1 प्राइम पे है, फॉस्फेट जो है वो 5 प्राइम कार्बन पे लगता है। तो जो 5 प्राइम वाला कार्बन है उसका OH उड़ा दो और यहाँ पे हम लगा देते हैं OP डबल बॉन्ड O नेगेटिव, फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया। ऑब्जर्व करो, बेस को 1 प्राइम पे डाला है, फॉस्फेट को 5 प्राइम पे डाला है और ये पूरा स्ट्रक्चर अब बन जाता है आपका न्यूक्लियोटाइड। समझा?
यस और नो? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो लेट्स से आई हैव वन न्यूक्लियोटाइड ओवर हियर, दूसरा न्यूक्लियोटाइड उसके नीचे है। अब दो न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो ज्वाइन होता है बिटवीन द 3 प्राइम एंड 5 प्राइम कार्बन। 3 प्राइम मतलब ये वाला कार्बन पहले न्यूक्लियोटाइड का, और 5 प्राइम मतलब ये वाला कार्बन ऑफ द सेकेंड न्यूक्लियोटाइड। और ये फॉस्फेट ग्रुप 3 और 5 के बीच में जब बॉन्डिंग करेगा तो वो बनाएगा डाई न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाएगा? Dinucleotide. डाई न्यूक्लियोटाइड। वैसे ही मेरे पास तीसरा न्यूक्लियोटाइड आया तो ये बनाएगा Rhino. ट्राई न्यूक्लियोटाइड। चौथा आया तो Tetra. टेट्रा, और ऐसे कंटिन्यू करते जाएंगे तो Poly. पॉली न्यूक्लियोटाइड। बराबर। और 3 और 5 प्राइम के बीच में जो लिंकेज बनता है ना उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। फॉस्फोडाइएस्टर क्योंकि एस्टर के जैसा होता है तो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बोलते हैं। समझा? तो अब डीएनए का स्ट्रक्चर बनता कैसे है, लेट्स अंडरस्टैंड। तो एज आई सेड कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं बाय द फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो मान लो ये मेरा न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, 5 लिया मैंने। और यहाँ पर बेस जो है वो हर एक न्यूक्लियोटाइड के फर्स्ट कार्बन पे 1 प्राइम कार्बन पे अटैच्ड है, जिसको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ बाय द हॉरिजॉन्टल लाइन। ये सब क्या है? अपने बेस है। शुगर और फॉस्फेट ग्रुप इस सर्कल के अंदर विजुअलाइज कर दो। समझ रहा है? ठीक है। एंड लेट्स से ये वाला जो एक न्यूक्लियोटाइड है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम पे जा रहा है। अब 3 प्राइम और 5 प्राइम समझ रहा है ना आपको? दिस इज द 3 प्राइम कार्बन एंड दिस इज द 5 प्राइम कार्बन। तो 3 से शुरू होके 5 पे जा रहा है। ओके, ये एक स्ट्रैंड है। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रैंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड, स्ट्रैंड 1। ऐसे ही एक और पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है between many nucleotides. I have the phosphodiester linkage. ठीक है, और इसमें भी मेरे फर्स्ट कार्बन पे अलग अलग बेसिस है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन इनके बेसिस को रिलेट कर रहा है, और ये एक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस में जाएगा 5 प्राइम से 3 प्राइम। एक अगर 3 प्राइम से 5 प्राइम पे जाता है तो दूसरा 5 प्राइम से 3 प्राइम पे जाएगा, और ये दूसरे स्ट्रैंड को करस्पॉन्ड करेगा। इसको मैं बोलता हूँ स्ट्रैंड 2। ओके, अब मुझे बताओ डीएनए के बेसिस कौन कौन से थे? Adenine. एडेनाइन, Guanine. Guanine. Cytosine. साइटोसिन एंड थाइमीन। एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, थाइमीन। अब यहाँ पर द बेसिस आर ऑलवेज लिंक्ड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ पेयरिंग। Adenine is always paired with thymine and guanine is always paired with cytosine. So it's always ATGC, ATGC, ATGC. A and T, adenine and thymine are linked by 2 hydrogen bonds, and guanine and cytosine are linked by 3 hydrogen bonds. Adenine with thymine is linked by 2 hydrogen bonds, and guanine cytosine is linked by 3 hydrogen bonds. तो मान लो यहाँ पर मेरा बेस है एडेनाइन, तो सामने वाले स्ट्रैंड पे होना चाहिए थाइमीन, और इन दोनों के बीच में होना चाहिए 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये गुआनाइन है तो ये साइटोसिन होना चाहिए, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे थाइमीन है तो सामने एडेनाइन होना चाहिए और डबल बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ साइटोसिन है तो सामने गुआनाइन होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन का। ठीक है, वापस एडेनाइन है तो सामने थाइमीन होना चाहिए एंड डबल बॉन्ड, एंड सो ऑन। और जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक करता है तो एक्चुअली एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है, एंड दिस हेलिकल स्ट्रक्चर रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ DNA, which we actually observe something like this. इस तरह से DNA को रिप्रेजेंट किया जाता है कि नहीं?
तो ये जो आप देख रहे हो दिस इज वन स्ट्रैंड, ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, और दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, कभी डबल कभी ट्रिपल, कभी डबल कभी ट्रिपल, डिपेंडिंग कि कौन सा बेस कॉम्प्लीमेंट कर रहा है सामने। ठीक है, सो दिस डीएनए स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। द डिस्कवरर्स ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर वर वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है, अब कुछ बेसिक डिफरेंस जो आपको ध्यान होना चाहिए। डीएनए जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जो आप देख रहे हो, डबल हेलिक्स या डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, वेयरएज आरएनए जो होता है दैट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, मतलब उसमें एक ही स्ट्रैंड रहता है। ये देखो, आरएनए is having a single strand with the bases guanine, cytosine, then adenine and uracil. बराबर, साइटोसिन, गुआनाइन, एडेनाइन एंड यूरेसिल। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है जो आप देख रहे हो विद द बेसिस साइटोसिन, गुआनाइन, एडेनाइन एंड थाइमीन। और हमेशा बेस पेयर कैसा होता है, गुआनाइन के साथ साइटोसिन, एडेनाइन के साथ थाइमीन। इज दिस पार्ट वेरी क्लियर टू यू ऑल? Yes. ओके, नाउ डीएनए और आरएनए का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन। आरएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ proteins. Ribonucleic acid is responsible for the synthesis of proteins. लेकिन कौन सा प्रोटीन सिंथेसाइज करना है उसका मैसेज ये देता है डीएनए। तो दिस इज बेसिकली द मैसेंजर। कौन सा स्पेसिफिक प्रोटीन सिंथेसाइज करना है वो डीएनए सिग्नल देगा आरएनए को, और आरएनए उस प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। ठीक है, दूसरी बात, डीएनए जो है वो डुप्लीकेट कर सकता है, डुप्लीकेशन पॉसिबल, इसलिए तो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन डीएनए के थ्रू स्टोर होता है। आरएनए जो है वो डुप्लीकेशन नहीं करता है, डुप्लीकेशन नहीं करता है। ठीक है, अब डुप्लीकेट होता कैसे है डीएनए का, तो यहाँ पर एज आई सेड दिस इज द डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर, ये हो गया अपना डीएनए का एक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो डुप्लीकेशन में एक पेरेंट डीएनए दो डॉटर डीएनए सेल्स में कन्वर्ट होता है। वन पेरेंट डीएनए कन्वर्ट्स इनटू टू डॉटर डीएनएस। जो डुप्लीकेटेड डीएनएस होते हैं उनको डॉटर डीएनएस बोलते हैं। उसमें वन ऑफ द स्ट्रैंड इज स्प्लिटेड फॉर बोथ द डॉटर डीएनएस। मतलब यहाँ पर लेट्स से मैं सेम कलर यूज करता हूं, तो एक स्ट्रैंड इसको मिल जाता है और दूसरा स्ट्रैंड इसको मिल जाता है। अब इसके साथ लिंक करने के लिए जो सेकंड स्ट्रैंड है वो नए से सिंथेसाइज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ और यहाँ पर एक और स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ, और एग्जैक्टली सेम टाइप का डीएनए यहाँ पर रिप्रोड्यूस हो जाएगा इस तरह से। तो दिस इज द पेरेंट डीएनए कन्वर्टेड इनटू टू डॉटर डीएनएस। और ये सिलसिला अगर कंटिन्यू होते गया तो दिस कैन स्प्लिट अगेन इनटू टू, दैट टू कैन स्प्लिट इनटू फोर, फोर कैन स्प्लिट इनटू एट, एट कैन स्प्लिट इनटू 16, एंड वी कैन हैव मल्टीपल डीएनएस replicated और duplicated. Fine. Yes, sir. न्यूक्लिक एसिड्स काफी सिंपल सा पार्ट है, इसमें खाली बेसिस के स्ट्रक्चर्स को आपको ध्यान रखना है along with the base structure। जो सीक्वेंस में यहाँ पर मेन पॉइंट्स मैंने बताए हैं कि बेस फर्स्ट कार्बन पे होता है, बेस इज एट द फर्स्ट कार्बन, phosphate is at the fifth carbon, the two nucleotides are joined between 3 and 5 prime carbons and the linkage is called phosphodiester linkage। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। Any doubt up till here?
No, sir. Okay. So now ऐसा एक क्वेश्चन अगर आया, let's say we have a sequence 5 prime C G T T T A A G and 3 prime. तो आपको पूछा है इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है वो कैसा होना चाहिए, इसका कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ 3 to 5. 3 प्राइम टू 5 प्राइम जाएगा अब, और साइटोसिन के सामने G. जी, जी के सामने C. सी, ट्रिपल टी के सामने ए के सामने टी और जी। हो गया, ये डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड रहेगा। और अब साइटोसिन गुआनाइन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और एडेनाइन थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एंड दैट इज हाउ द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर विल रिजल्ट। अंडरस्टूड? Yes, sir. That's it. This completes the biomolecules chapter. तो काफी शॉर्ट और सिंपल चैप्टर है, स्कोरिंग भी है, ठीक है। इसके पहले we had the first part of biomolecules chapter which was related with carbohydrates. उसमें भी मैंने आपको बोला था एक ही चीज पूरे चैप्टर में या पूरे कार्बोहाइड्रेट्स में इंपॉर्टेंट है, क्या था वो? Glucose structure. ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। बिकॉज वंस यू नो ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, आप फ्रक्टोज का समझ सकते हो, फिर डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स सेम लाइंस पे एकदम इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स के पार्ट में अल्फा अमीनो एसिड्स का कॉन्सेप्ट है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, उसका क्लासिफिकेशन है, डीनेचुरेशन का कॉन्सेप्ट है। न्यूक्लिक एसिड्स फिर एंजाइम का एक छोटा सा पार्ट है। न्यूक्लिक एसिड्स में डीएनए आरएनए में 3 कंपोनेंट्स, बीएसपी बेस शुगर फॉस्फेट का, बेस में फर्क, शुगर में फर्क, एंड फिर उसका स्ट्रैंड्स या फिर लिंकिंग कैसा होता है उसका कॉन्सेप्ट। क्लियर? Yes, sir. That's it. With this we complete with biomolecules. Important questions and the exercise you completed so that you are prepared for the test. Biomolecules का टेस्ट ये मंथ में scheduled भी है, right? Yes, sir. हाँ।